Hello, friends. Before 2021 ends and we step into 2022, I'm super excited to present another one of my compilation video of Hindi English motivational and inspirational stories. Hopefully, these stories will once again spark our motivational feelings and teach us valuable life lessons. Let's watch and enjoy these stories. One day, a brave soldier wanted to show a new technique of shooting to all his trainees. He started explaining, "Control your breath while hitting the target. Be relaxed when aiming a target. Aim and focus onto the target. Squeeze the trigger and fire." All trainees were listening to the brave soldier very carefully. They were very excited to learn the new technique. Soldier told his trainees to cover his eyes as he wanted to shoot blindfolded. He finally aimed the target and fired. And to everyone's surprise, he missed the target. Soldier looked at his trainees. They looked embarrassed because their fearless brave master had missed the target. The brave soldier was calm and relaxed. He immediately asked his trainees, "What lesson do you think I intend to teach you all today?" One trainee hesitantly answered, "We thought you would show us how to shoot blindfolded at the target." The brave soldier replied, "No, I wanted to tell you all that if you want to be successful in life, don't forget the target. You have to have an eye on the target. Otherwise, you may miss your target. We need to consistently focus on what we want. Otherwise, we may miss a good opportunity in life." A young girl named Dia was all set to go to school with her backpack and lunchbox ready for the day. Dia was waiting for her school bus. She heard a voice calling her, "Didi." She turned around to know who is there. To her surprise, a small little poor boy was calling her. Dia asked, "Who are you? And what do you want from me?" The little poor boy asked her for help. Dia surprisingly said, "I don't have anything. How can I help you?" "Why don't you go to your parents, as my parents never refuse me for any kind of help?" The poor boy said, "I have no one. I'm all alone." Dia felt sorry for him, but still could not figure out how can she be helpful to the poor boy. She asked again, "But how can I help you?" The poor boy asked, "Do you carry something to eat in your school bag?" Dia promptly said, "Yes, I do carry my lunchbox." The poor boy asked, "What do you have in your lunchbox?" Dia replied, "I have no idea. My mom packed some tasty lunch for me." The poor boy's mouth filled with water and he whispered, "Can you give something of it to eat? I have not eaten anything since last 2 days." Dia has no idea what hunger is, as she used to get all before she could think or ask for. She innocently handed over her lunchbox
to the poor boy, and same time her school bus arrived and started honking. In hurry, she rushed towards the bus. When she was about to board the bus, she realized about her lunch box and turned around to ask for it. But when she saw a big smile on her new friend's face, she could not utter a single word from her mouth. Just now you have seen how by showing a small kind gesture, Diya has earned all the pleasures of life. एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी जिसका नाम था ग्रेस, जो छोटे से एक ही सपना देखते हुए बड़ी हुई थी, that one day, someday, she'll be a ballerina. She used to spend hours and hours each week training herself for more flexibility, various stretches, and also to learn the perfect spin. वो रात दिन सपनों में अपने आप को फेमस प्लेटफॉर्म्स में डांस परफॉर्म करते हुए देखती। एक दिन डिनर टेबल में ग्रेस की मॉम मिसेस ग्रे ने कहा, Wouldn't it be more exciting to be a famous doctor? देखो, तुम्हारे डैड इतने फेमस डॉक्टर हैं, उनका अपना क्लिनिक है, फिर कल बड़े होकर उनका क्लिनिक भी तो तुमने ही संभालना है। तुम भी अपनी डैड की तरह एक दिन फेमस हो जाओगी। हर यंग बच्चा बड़े होकर मूवी स्टार, एस्ट्रोनॉट, नोबेल प्राइज विनर होने के सपने देखता है। ग्रेस भी फेमस होना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी, लेकिन वो तो एक फेमस डांसर बनना चाहती थी। इसलिए उसने जल्दी से नहीं बोला और टेबल छोड़कर चली गई। ऐसे ही साल गुजरने लगे और मिसेस ग्रे का प्रेशर बढ़ने लगा एक रियल करियर चूज करने का। ग्रेस हैड नो इंटरेस्ट इन साइंस एट ऑल। Finally, in +1, she took the subjects which she never liked. एक और उसका passion, love for dance, which she had been practicing since a decade, and other side, intense pressure by her mom. Finally, Grace enrolled for medical course and no dance program. Grace finished her course with difficulty and became a doctor, but could not cope up as a doctor and failed miserably in life. Grace was very disappointed. She never wanted such a career. ना तो वो डॉक्टर बन सकी, ना ही डांसर। Above everything, Grace was devastated as she could not pursue her passion, dream, जो लाइफ में उसे फुलफिलमेंट दे सकता था। दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, एक का नाम था जॉर्ज और दूसरे का नाम था डेविड। जॉर्ज एक रिच फैमिली को बिलोंग करता था और डेविड एक पुअर फैमिली से था, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप अमीरी गरीबी से बहुत ऊपर थी। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को हमेशा रेडी रहते थे। एक दिन जॉर्ज के कुछ और दोस्त उसके घर आए हुए थे और जॉर्ज उनके साथ बातें करने में बिजी था। तभी डेविड भी जॉर्ज से मिलने आ गया। जॉर्ज और डेविड अपनी फ्रेंडशिप के लिए जाने जाते थे, इसलिए जॉर्ज के दूसरे दोस्त भी डेविड को जानते थे। डेविड को देखते ही उनमें से एक दोस्त ने कहा, डेविड, तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। दूसरा दोस्त बोला, अरे डूड, तुम्हारी ड्रेस, वाओ, परफेक्ट मैचिंग, हैंडसम लुक्स, क्या लग रहे हो। ये सब सुनते ही उनमें से एक दोस्त बोल पड़ा, अरे यह सब तो जॉर्ज का ही दिया हुआ है। जॉर्ज भी अपने दोस्तों की कंपनी में मस्त था। हंसी मजाक में उसने कहा, डेविड तो मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है।
He thrives on my pieces. अगर मैं नहीं होता तो डेविड का क्या होता? इस बात पर सब फ्रेंड्स जोर से हंसने लगे। डेविड को यह बात बहुत बुरी लगी क्योंकि डेविड हैड हाई सेल्फ एस्टीम। वह एक स्वाभिमानी लड़का था। जॉर्ज कभी कभी उसके बहुत मना करने पर भी उसे कुछ काम की चीजें फोर्सफुली दे दिया करता था। जॉर्ज को भी अपनी बात कहते ही डेविड की उतरी शक्ल देखकर समझ में आ गया उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन फिर हंसी मजाक के बाद सब दोस्त अपने अपने घर चले गए। इस इंसिडेंट के बाद डेविड जॉर्ज को इग्नोर करने लगा। अगर बात हो भी जाती तो वह यस और नो में जवाब दे देता। जॉर्ज के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब बहुत दिनों बाद भी सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो जॉर्ज अपनी मॉम के पास गया और सारी बात अपने मॉम को बता डाली। मॉम ने ध्यान से सारी बातें सुनी और बोली, जॉर्ज तुम अपनी मिस्टेक मानते हो? जॉर्ज ने कहा, यस मॉम। तब जॉर्ज की मॉम ने कहा, एक पेपर लो और तुमसे जो भी मिस्टेक हुई है उसे पेपर में लिख लो। अब इस पेपर के खूब सारे टुकड़े कर दो और जब तुम बाहर जाओ इन पेपर के पीसेस को बाहर फेंक देना। शायद तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा, फिर इसके बारे में हम कल बात करेंगे। जॉर्ज ने जैसा मॉम ने कहा था वैसा ही किया और फिर नेक्स्ट डे मॉम के पास आया और कहा, मॉम कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। मॉम ने कहा, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जो कल पेपर के टुकड़े फेंक आए थे बस उनको वापस ले आओ। जॉर्ज के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह छोटे छोटे पेपर के पीसेस जो हवा में इधर उधर उड़ गए होंगे उनको वो वापस कैसे लाएगा। उसने मॉम से कहा, मैं उनको वापस नहीं ला सकता हूँ। तब मॉम ने समझाते हुए जॉर्ज से कहा, बेटा ठीक उसी तरह आपने डेविड के ऑनर और सेल्फ रिस्पेक्ट के पीसेस कर डाले हैं जिन्हें वापस लाना और जोड़ना पॉसिबल नहीं है। जो आपके मुंह से गलत बात निकली है उसको वापस नहीं लिया जा सकता। आपने ऑलरेडी डेविड को बहुत अपसेट कर दिया है। अभी उसके पास जाओ और उसे सॉरी बोलकर आओ। एक बॉय था जिसका नाम था जॉर्ज। वो अपने कुछ गलत फ्रेंड्स के साथ कुछ बुरी आदतों का यूज्ड टू हो गया था। वो अपना मैक्सिमम टाइम क्या करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताता था। उसके फादर मिस्टर फर्नांडिस को भी इस बात का एहसास होने लगा था, तो उन्होंने एक बार उससे बात की और उसको समझाने की कोशिश की। जॉर्ज ने कहा, डैड यू डोंट अंडरस्टैंड, आई एम ग्रोन अप, आजकल ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको ये बात समझनी चाहिए। मिस्टर फर्नांडिस बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा इससे पहले पानी सर के ऊपर आ जाए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा और जॉर्ज की बुरी आदतें छुड़ानी पड़ेंगी। उन्होंने एक संडे जॉर्ज को अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए कहा। जॉर्ज बहुत खुश हो गया। उसने नेक्स्ट संडे ही अपने सारे फ्रेंड्स को घर में बुला दिया। मिस्टर फर्नांडिस सारे फ्रेंड्स से मिले, थोड़ी हंसी मजाक की और उन्होंने कहा, बच्चों तुम सब लोग बड़े हो गए हो तो क्यों ना मैं तुम्हें आज कुछ एक चैलेंजिंग टास्क दूं। तो बच्चे बड़े खुश थे, जोश में थे, तो उन्होंने कहा, श्योर अंकल, व्हाई नॉट, वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस। तो मिस्टर फर्नांडिस ने कहा, चलो ऐसा करते हैं, शुरुआत जॉर्ज से ही करते हैं। तो जॉर्ज को बोला, बेटा देख रहे हो घर की थोड़ी दूरी पे एक ट्रैकिंग रूट जाता था जो एक हिल टॉप में पहुंचता था और रास्ता काफ़ी मुश्किल था, थोड़ा चैलेंजिंग था। तो उन्होंने कहा, बेटा ये हिल टॉप में आपको जाना है और कंडीशन एक ही है कि रास्ते में आपको कहीं पे भी रुकना नहीं है। आपको हिल टॉप पहुँचना है, वहाँ पे बिना रेस्ट के सीधे के सीधे वापस आ जाना है। जॉर्ज थोड़ा तो घबराया, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपने फादर को प्रूफ करना है। तो उसने फटाफट चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहने और ट्रैकिंग रूट के लिए निकल पड़ा। चैलेंज थोड़ा मुश्किल वाला था, लेकिन जॉर्ज के इरादे बहुत बुलंद थे। जॉर्ज फटाफट हिल टॉप में दौड़ दौड़ के चढ़ने लगा
और जैसे ही वो हिल टॉप पहुंचा, उसने बिना रेस्ट किए फटाफट वहां से वापस आना शुरू कर दिया। मन में एक ही बात आ रही थी, अगर मैंने ये चैलेंज पूरा कर दिया तो मेरे फादर मेरे से बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे उनको ये प्रूव भी करना है कि नाउ आई एम ग्रोन अप। सो फटाफट पूरा करके जॉर्ज वापस आने लगा और बिना किसी टाइम में वो घर भी पहुंच गया और सारे फ्रेंड्स ने मतलब तालियों से जॉर्ज का वेलकम किया घर में पहुंचने के बाद। मिस्टर फर्नांडिस भी जॉर्ज से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, जॉर्ज अब तुम थक गए होगे, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एंजॉय करो, रेस्ट करो, कुछ स्नैक्स ले लो और उसके बाद मैं तुम्हें सेकंड चैलेंज देता हूँ। सब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने जैसे ही बच्चों के स्नैक्स ख़त्म हुए तो उन्होंने कहा, जॉर्ज आ जाओ, अपने सेकंड चैलेंज के लिए रेडी हो? जॉर्ज ने कहा यस। तो उन्होंने अपने घर के ही आगे बोला, ये रोड क्रॉस करके आप देख लो, एक सुंदर सा पार्क दिख रहा है। उस पार्क में एक लॉन है जिसमें बहुत अच्छी नरम नरम घास है। सो अभी आपको क्या करना है, उस लॉन में जाना है और एक लॉन का एक राउंड लेना है और घर वापस आना है। अभी सब लोग बहुत सरप्राइज थे कि इतना डिफिकल्ट चैलेंज देने के बाद व्हाट्स रॉन्ग विद अंकल, ये सिंपल सा चैलेंज क्या दे दिया है हमें। तो जॉर्ज ने सोचा, फिर जॉर्ज ने फादर को थोड़ा सा स्टेयर किया, फिर सोचा चलो इट्स ओके, मैं फटाफट अपना चैलेंज फिनिश करता हूँ। सो ही गॉट अप अगेन, उसने अपने स्पोर्ट्स शू पहने और वो सेकेंड चैलेंज के लिए निकल पड़ा। दौड़ के वो लॉन तो पहुँचा, लेकिन वहाँ दौड़ना तो दूर, वो लॉन में चल भी नहीं पा रहा था। उसको चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी और आधे ही रास्ते से वह पूरा राउंड भी पूरा नहीं लिया उसने, आधे ही रास्ते से वह घर वापस आ गया। जैसे ही घर वापस आया उसने अपना शू खोला और शू जैसे ही खोला उसके पाँव से थोड़ा खून बह रहा था और उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है और सब लोग देख रहे थे कि ये क्या हो गया। और उसने अपने शू को झाड़ा तो देखा उसमें एक छोटा सा कांटा था। सेम टाइम मिस्टर फर्नांडिस वहाँ आ गए और उन्हें स्माइल करते हुए कहा कि ये जो छोटा सा कांटा है ये मैंने ही तुम्हारे शू के अंदर रखा था। एवरीबॉडी वॉज शॉक्ड। मिस्टर फर्नांडिस ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बेटा सुबह जब तुम्हें डिफ़िकल्ट चैलेंज दिया था तो आप सब लोग पूरे जोश में थे, उसको करना चाहते थे और जॉर्ज ने उसको पूरा करके भी दिखाया। लेकिन उसके बाद आपको एक सिंपल सा टास्क दिया गया, लेकिन उसको एक छोटे से कांटे के कारण आप लोग पूरा नहीं कर पाए। जॉर्ज उसमें फेल हो गया। इसी तरह लाइफ में जब बाहर से बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजेस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमारा जोश कम नहीं होता है, हम उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर अपने अंदर ही एक छोटी सी बुराई होती है, कुछ कमी होती है, कुछ ड्रॉबैक होती है, तो वो हमें कभी ना कभी फेलियर का सामना करा देती है और हमें निराशा हो जाती है, हम किसी काम में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। One day, Edison came home and gave a letter to his mother. He told her, "My teacher gave this letter to me and told me to give it to you only." His mother's eyes were tearful as she read the letter out loud to her child. "Your son is a genius. The school is too small for him and doesn't have enough good teachers for training him. Please teach him yourself." Many years after Edison's mother had died, he became one of the greatest inventors of the century. One day, he was going through a closet and he found the folded letter that his old teacher wrote to his mother that day. He opened it. The message written on the letter was, "Your son is adult. We won't let him come to school anymore." Edison cried for hours and then he wrote in his diary, "Thomas Alva Edison was an adult child that by a hero mother became the genius of the century."
My mother was the making of me. आज मिस्टर जोशी को ऑफिस में इन्फॉर्म किया गया कि नेक्स्ट मंथ से वे सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम चंडीगढ़ से संभालेंगे। मिस्टर जोशी उस दिन जल्दी घर आ गए। घर आते ही उन्होंने नेक्स्ट मंथ हैदराबाद छोड़कर चंडीगढ़ शिफ्ट होने की बात सबको बताई। मिस्टर एंड मिसेस जोशी वर अ बिट वरीड about the sudden uncalled transfer, क्योंकि फिर से एक बार दोनों बच्चों की स्टडीज डिस्टर्ब होने वाली थी। Both sisters, Jia and Dia, were super excited to move to the new place. दोनों new place, new house and new friends को लेकर excited थे। जिया ने अपने डैड से पूछा, Dad, tell me, how will my new friends be? मिस्टर जोशी ने कहा, बेटा, हैदराबाद में आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? जिया said, Dad, they all are rude, disrespectful, cheaters, and they even lie many a times. जिया की बात सुनकर मिस्टर जोशी बोले, Those are exactly the type of friends you will get in Chandigarh. अब दिया से रहा नहीं गया और curiously बोली, Dad, how about my new friends in new place? मिस्टर जोशी ने अपना क्वेश्चन रिपीट करते हुए कहा, बेटा, आपके पास अभी कैसे फ्रेंड्स हैं? दिया से, Dad, my friends are awesome. They are cooperative, understanding as well as loving and caring. मिस्टर जोशी बोले, तो आपको ऐसे ही फ्रेंड्स चंडीगढ़ में भी मिलेंगे। इस इंसिडेंट ने हमें एक बहुत बड़ी बात बता दी। That is, what you see in the world will see in you. You see friends, humanity. You see love, care. You see peace, harmony. You see hope, chance. You see compassion, kindness. You see love, happiness. You see smile, laughter. You see possibilities, positivity. And the world will see the same in you. The world is the manifestation and reflection of our own thoughts and our own being. हम हंसते हैं तो दुनिया हमारे साथ हंसती है, लेकिन जब हम रोते हैं तो हम बिल्कुल अकेले रोते हैं। Young girl named Saira who had lost both her legs accidentally. सायरा रेगुलरली भगवान की पूजा करती थी। एक बार उसके अंकल ने उससे कहा, तुम तो भगवान को इतना पूजती हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है? आपको पता है तब सायरा ने क्या कहा? सायरा बोली, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं जिससे मैं सुंदर पेंटिंग बना सकती हूँ। मुझे तो पाँव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी उन पेंटिंग्स को देखने दूर दूर से लोग मेरे पास खुद ही चलकर आते हैं और मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। एक बार एक छोटा सा लड़का था जो अपनी मॉम के साथ रहता था। They were very poor and this little boy was handsome and very smart. जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया, he became even more handsome and smarter. लेकिन उसकी मॉम हमेशा बहुत सैड रहती थी, बहुत दुखी रहती थी। एक बार इस बॉय ने अपनी मॉम से पूछा, माँ आप इतना दुखी क्यों रहते हो, इतना सैड क्यों रहते हो? तब उसकी मॉम ने बताया, बेटा एक बार एक फॉर्च्यून टेलर ने बताया था कि whosoever has teeth like yours will become very famous and coincidentally बेटा आपके टीथ एकदम मेरी तरह हैं।
The boy was surprised and he asked his mom, "Mom, अगर मैं famous हो गया तो आपको क्या अच्छा नहीं लगेगा?" Mom said, "Oh no, बेटा ऐसी बात नहीं है। किस मॉम को अगर उसका बेटा फेमस हो जाता है तो अच्छा नहीं लगेगा? मैं तो हमेशा इसलिए दुखी रहती हूँ, हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि कहीं अगर तुम कल फेमस हो गए तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे, मुझको छोड़ तो नहीं दोगे." Upon hearing this, the small little boy, he started crying. He stood for a while and then he ran out of the house. He picked up a rock from outside and he smashed his front teeth. Mom surprised थी कि उसने क्या कर दिया है। उसने पूछा, "बेटा, ये तुमने क्या किया?" उसने अपनी मॉम का हाथ पकड़ के कहा, "माँ, अगर मेरे ये टीथ आपको इतना दुखी करते हैं तो मुझे अपने ये टीथ नहीं चाहिए। They are of no use to me. I don't want to be famous with these teeth. मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपके आशीर्वाद से ही फेमस होना चाहता हूँ." My friends, you know this little boy was none other than the great चाणक्य. He is the one जिन्होंने भारत के शास्त्रों का अध्ययन किया and then he compiled the multiple lessons which is called as Chanakya Niti. Once a man came to a saint and said, "I have many bad habits. Which one of them should I give up first?" The saint said, "Give up telling lies first and always speak the truth." The man promised to do so and went home. ये आदमी एक चोर था। उसे रात में चोरी के लिए जाना था। उसने सोचा, अगर कल संत मुझसे पूछेंगे कि मैं कहाँ था, मैं क्या कहूँगा? मैं चोरी करने गया था। मैं ऐसा नहीं कह सकता, पर मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। अगर मैं सच कहूँ तो सब मुझे चोर कहेंगे, मुझे चोरी करने की पनिशमेंट दी जाएगी। So the man decided not to steal that night and gave up this bad habit. Next day he felt like drinking as he was a drunkard. When he was about to do so, he said to himself, "मैं संत से क्या कहूँगा अगर वह मुझसे पूछेंगे कि मैंने दिन में क्या किया? मैं झूठ नहीं बोल सकता और अगर मैं सच बोलूं तो संत मेरे बारे में क्या सोचेंगे?" So he gave up the idea of drinking also. In this way, whenever the man thought of doing something bad, he remembered his promise to tell the truth at all times. One by one, he gave up all his bad habits and became a very good person. एक बार गुरु द्रोणाचार्य गुरुकुल में कौरवों और पांडवों को पढ़ा रहे थे। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पढ़ाने के बाद उन्होंने सबसे पूछा कि आज हमने क्या सीखा। सबने अपने अपने तरीके से बताया कि हमें सच बोलना चाहिए। जब युधिष्ठिर की बारी आई तो युधिष्ठिर ने कहा, "मुझे अभी समझ नहीं आया." Everybody was surprised to hear the answer of Yudhishthir as he was very bright student, very brilliant student. सबको समझ नहीं आ रहा था कि इतना सिंपल सा स्टेटमेंट युधिष्ठिर के क्यों नहीं समझ आया। तब गुरु ने कहा, "कोई बात नहीं, तुम मुझे कल बता देना." नेक्स्ट डे फिर गुरु ने युधिष्ठिर से पूछा कि कल जो मैंने पढ़ाया था तुम्हें समझ आया, क्या सीख मिली? युधिष्ठिर ने फिर वही जवाब दिया कि अभी भी मुझे समझ नहीं आया। ऐसा पूरा एक हफ्ता चलता रहा। सबको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सिंपल सी सीख युधिष्ठिर के क्यों नहीं समझ आ रही है। फिर एक हफ्ते बाद गुरु ने फिर से सेम क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछा कि मैंने जो पढ़ाया था अब तुम्हें समझ आया? युधिष्ठिर बोले, गुरु मुझे आज ये समझ आ गया है कि हमें हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। युधिष्ठिर का ऐसा कहना था कि दुर्योधन ने मजाक बनाते हुआ कहा, चलो एक हफ्ते बाद तो तुम्हें कम से कम एक छोटी सी सीख याद हो गई। तब पता है आपको युधिष्ठिर ने इसका क्या जवाब दिया? युधिष्ठिर ने बोला, जब पहले दिन इस सीख के बारे में पढ़ा तो मेरे दिमाग में बहुत सारे झूठ थे। दूसरे दिन थोड़े से रिड्यूस हुए और एक हफ्ता लगा, तब जाके मुझे कल से मेरे दिमाग में कोई भी झूठ नहीं आ रहा है। अब मुझे समझ भी आ गया है और मैं इसको फॉलो भी करूंगा कि हमेशा हमें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। Cultivating
gratitude neither costs any money nor takes much time, but certainly the benefits are tremendous. Most of us are always attracted towards the darker, gloomy side of the picture, and exactly the same thing happens in our lives also. To develop an attitude of gratitude, simply take a few moments to focus on all that we have rather than complain about all the things we deserve to have. We all have blessed life, and we definitely have reasons to cherish and enjoy, but yet are attracted towards sadness, problems, or dark gloomy portions in our life. If you really notice, bad time or sadness never lasts for longer time and usually followed by good time, but they are the ones that attract us, hold us, and spoils our mind. Why can't we be thankful for every single second of our life? Why can't we enjoy each moment that life gives us? Friends, let's count our blessings. We have a blessed life. We have fresh air to breathe. We have drinking water to satisfy our thirst. We have clothes to wear. We have food to eat. We have shelter to stay. We have a wonderful family and lovely friends. Life is good and we are thankful. You know, thankful people are always happy. When we look at the big picture or put things in a larger perspective, we often find that whatever we are complaining of is not much to complain about. We all have enough things in life to be grateful for. Let's enjoy the gratefulness of life and enjoy each moment of our life.